Hello, students. A very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next chapter of your syllabus. The name of the chapter is Combustion and Fuels. So, in this chapter, we will discuss about the what is the meaning of a combustion process, which conditions are necessary for the combustion process, types of a combustion, and what is the meaning of a fuel, what are the importance of fuels, and what are the harmful effects of fuels. And the last one concept is structure of a flame. So all this concept we will discuss in this session. So in the last session already we discussed about the coal and the petroleum. We learn about the different kinds of fuels, for example coal, petroleum, and the natural gas. So different kinds of fuels have a different kind of purposes at home and industries for running the vehicles. So now in this session we discuss about the combustion of substances. तो आज का सेशन हमें एक नए चैप्टर के साथ क्या है स्टार्ट करना है. पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था कोल और पेट्रोलियम के बारे में. आज हमें डिस्कशन कर लेना है कंबशन के बारे में. सो स्टार्ट टुडे सेशन. फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंबशन. तो फर्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंबशन. Now see, we know that fuels provide energy on burning. When fuels start burning, it provides the energy along with the evolution of heat. जब भी फ्यूल्स क्या है बर्न होता है, बर्न होते समय वो क्या करता है तो एनर्जी को क्या है प्रोड्यूस करता है. All materials do not burn in the same way and some do not burn at all. Now see, different kinds of fuels are available and some fuels not burn in the same way and some do not burn at all. कुछ ऐसे मटेरियल्स है जब हम उसको हीट अप्लाई करते हैं वो कुछ हद तक क्या बोलते बर्न होते हैं और कुछ क्या बोलते कंप्लीटली क्या है बर्न नहीं होते. नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंबशन. कंबशन इज द प्रोसेस of a burning of a substance in the presence of oxygen along with the evolution of a heat and the energy. कंबशन एक क्या है सब्सटेंस की क्या बोलते बर्निंग प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. वो एयर के साथ कंबाइन होकर क्या बोलते एक सब्सटेंस का जो बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हमें क्या कहना है कंबशन कहना है. कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन along with the evolution of heat and the energy. कंबशन एक सब्सटेंस की क्या बोलते बर्निंग प्रोसेस है. वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है. मिक्स होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं तो हीट एंड एनर्जी. अंडरस्टैंड. इट इज द प्रोसेस, इट इज द बर्निंग प्रोसेस ऑफ अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंस की क्या एक बर्निंग प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है, बर्न होते समय वो क्या करता है तो लाइट और क्या है एनर्जी को क्या है प्रोड्यूस करता है. What is the simple example? For example, charcoals burn in the air to give the carbon dioxide and the heat. Now see, when charcoal burns in the air, it gives the carbon dioxide and the heat. Now take the example. This is charcoal. C plus O2. It gives the carbon dioxide plus heat. Carbon dioxide plus heat. Now see, charcoal burns in the air. Charcoal is a substance. Now see, charcoal is a substance burn in the air and it gives the carbon dioxide and the water. It's the combustion process. Understand? Charcoal is a substance is burned in the presence of oxygen. It gives the heat and the energy. It gives the carbon dioxide and the heat energy. Understand? Now see, the substance that undergo combustion is said to be combustible. Now see, जो सब्सटेंस बर्निंग प्रोसेस में बर्न होता है उसको हमें क्या करना है
कंबस्टिबल कहना, फॉर एग्जाम्पल पेपर है, वुड है, चारकोल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है। अंडरस्टैंड? द सब्सटेंस दैट अंडरगो combustion is said to be combustible substances. For the example is the paper, wood, and our kerosene, petrol and the charcoal. जो सब्सटेंस हीट अप्लाई करने के बाद बर्न होते हैं उसको हमें क्या कहना है बोलो तो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहना है। द सब्सटेंस दैट डज नॉट अंडरगो कंबस्शन, द सब्सटेंस दैट डज नॉट गो अंडरगो कंबस्शन इज कॉल्ड एज द कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जांपल स्टोन एंड द मेटल। अपना जो स्टोन है, मेटल है, इसको हम क्या बोलते हो हीट अप्लाई क्या बोलते हो नहीं कर सकते, उसको आग नहीं लगती। अंडरस्टैंड? नाउ सी, combustion is said to be complete combustion when fuels burn in a sufficient amount of air. Combustion is said to be complete when a fuel burns in the sufficient amount of air. When the fuel start their burning in the sufficient of air is called the complete combustion. जब कोई फ्यूल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में कंप्लीटली बर्न होता है तो तब हमें उससे क्या कहना हो तो कंप्लीट कंबशन कहना है। फॉर एग्जांपल मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट इज गिवन आउट नाउ। सी, complete combustion of a methane. When methane react with the oxygen, it gives the carbon dioxide, water in the heat. जब भी मीथेन क्या बोलो तो एयर के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होने के बाद इट गिव्स द carbon dioxide, water and the heat. Understand what is the meaning of a complete combustion? When any substance burn in the presence of a sufficient air, जब कोई सब्सटेंस कंप्लीटली क्या बोलते बर्न होता है सफिशिएंट एयर में, उसको हमें क्या करना बोलो तो कंप्लीट कंबशन करना है। फॉर एग्जांपल मीथेन। नाउ सी, व्हेन मीथेन react with oxygen, when methane react with oxygen, it gives the carbon dioxide plus water plus heat. This one is a complete combustion. ये अपना क्या बोलो तो complete combustion है। When methane react with oxygen in sufficient amount of air, जब कोई सब्सटेंस sufficient amount of air में क्या होता है बर्न होता है, बर्न होने के बाद it gives the carbon dioxide, water and the heat energy. Understand? This one is incomplete combustion. Now discuss about the incomplete combustion. Takes place when the supply of air is not sufficient. Now see, when the supply of air is not sufficient, this combustion is called as the incomplete combustion. जब कोई बर्निंग प्रोसेस होती है, उस बर्निंग प्रोसेस में एयर का कमतरता हो जाना, एयर कम पड़ जाना, उसको हमें क्या कहना है तो इनकम्प्लीट कंबशन कहना है। Incomplete combustion has takes place when the supply of air is not sufficient. जब अपना एयर का सप्लाई है वो क्या बोलते हो सफिशिएंट नहीं रहता है, तब क्या बोलते हो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। एग्जांपल नाउ सी, मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट इज गिवन आउट बट इन द lesser amount. Now see, when the methane produce carbon monoxide and water, it is given out but in the lesser amount. जब मीथेन वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, इनसफिशिएंट जब एयर रहते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता बोलो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट एंड द वाटर। टेक वन मोर एग्जांपल नाउ सी, मीथेन जब सफिशिएंट एयर रहती है, जब मीथेन इसके साथ रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, इट गिव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट गिव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ध्यान में रखिए यहां पर क्या हो तो सफिशिएंट एयर है, दिस बर्निंग प्रोसेस हैव अ सफिशिएंट एयर। इसके पास क्या हो तो सफिशिएंट एयर है और इसके पास क्या हो तो इनसफिशिएंट एयर है। अंडरस्टैंड? व्हेन मीथेन रिएक्ट विद द सफिशिएंट एयर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जहां पर इनसफिशिएंट एयर रहती है, मीथेन जब उसके साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा बोल तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वन कांसेप्ट, व्हिच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन से कंडीशंस नेसेसरी है, ध्यान में रखिए।
Now see conditions necessary for combustion. So which conditions are necessary? Condition first one, now see presence of combustible substances. Now see presence of combustible substances, for example paper, wood, cloth, kerosene, petrol and diesel. ये कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हमें क्या बोलते हो, किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस की क्या है जरूरत पड़ती है. तो लिखिए प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल substance. Now next one is presence of supporter of combustion. Now see presence of a supporter of combustion. कंबशन प्रोसेस होने के लिए उसको सपोर्टर की जरूरत पड़ती है. तो कंबशन प्रोसेस में सपोर्टर कौन रहेगा? एयर. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल इज एयर. सो एयर इज कॉल्ड एज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. नाउ सी presence of supporter of combustion. For example उसको हम लिख सकते हैं एयर. सो एयर इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस आप लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल में पेपर है, अपना क्लॉथ है, केरोसिन है या वुड है, etc are the examples of presence of a combustible substance. Now see presence of a supporter of combustion is air. Air is also called the supporter of combustion. The next one, attachment of ignition or kindling. Now see next one is attainment of ignition or kindling, temperature, heat. Now see attainment of ignition, ignition और काइलिंग टेम्परेचर हीट. ध्यान में रखिए जब भी कोई बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें भी क्या होता है, इग्निशन होना क्या है, बहुत जरूरी है. तो दिस कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द कंबशन. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. हम डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट वाला जो कांसेप्ट रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ignition temperature. Ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catches fire or start burning is called as its ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire is called as the ignition temperature. जब lowest temperature में जब कोई substance क्या करता है, फायर को कैच करता है, उसको हमें क्या करना है, इग्निशन टेम्परेचर कहना है. अंडरस्टैंड? व्हेन द सब्सटेंस कैचेस द फायर इन द लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द इग्निशन टेम्परेचर. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, फायर को कैच करता है, कैच करने के बाद उसको हमें क्या कहना हो, तो इग्निशन टेम्परेचर कहना है. अंडरस्टैंड? Which conditions are necessary for the combustion already we discussed. Now see the types of a combustion. अब हम डिस्कशन कर लेते हैं types of combustion. Now see types of combustion. Types of combustion. Now see the various types of combustions. Combustion से क्या बोलते हो, अलग अलग प्रकार के क्या है, टाइप्स है. फर्स्ट वन इज रैपिड combustion. Now see the first one is a rapid combustion. When your mother brings a lighted matchsticks near the gas stove and burns on the knob, the gas immediately starts burning.
producing heat and light. Such a combustion is called as the burning rapid combustion. Now see, when we lighted the matchsticks near the gas stove and turn the knob, the gas immediately start burning. जब भी हम हीट किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस के पास लेके जाते हैं तो इमीडिएटली जहां पर हीट का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हमें क्या करना है, रैपिड कंबशन कहना है। अंडरस्टैंड? द गैस इमीडिएटली स्टार्ट बर्निंग प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। ध्यान में रखिए, जब कोई सब्सटेंस इमीडिएटली क्या बोलते हीट को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। अंडरस्टैंड? कैच कर लेता है और क्या करता है, लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसको हमें क्या करना कहना है, रैपिड कंबशन। अंडरस्टैंड? immediately start burning when the substance immediately start burning and produces heat and the light. For example, our gas, हमारा जो गैस है जब भी उसको इमीडिएटली हम लाइटर लगाते हैं, लगाने के बाद इमीडिएटली क्या करता है बोलो तो हीट एनर्जी और लाइट क्या है प्रोड्यूस करता है। उसको हमें कहना है रैपिड कंबशन। नाउ सी some next one is spontaneous combustion. Spontaneous combustion. Spontaneous combustion. Now see, some substances like white phosphorus burn on their own when exposed to air at room temperature. Now see, at room temperature, some substances like white phosphorus burn on their own. Such type of a condition in which substances suddenly burns into flames without the appliances of heat is called as the spontaneous combustion. Now see, some substances suddenly burns into the flames without the appliances of heat. So without the presence of heat, some substances rapidly start their burning process with the help of air is called as the spontaneous combustion. ऐसे कोई सब्सटेंस है, जब ऐसे सब्सटेंस एयर के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद इस इमीडिएटली स्टार्ट देयर burning process without the presence of heat is called the spontaneous combustion. For the example is a phosphorus. ध्यान में रखिए, when phosphorus react with the air, is immediately start their burning process without heat. वो क्या हो तो इमीडिएटली अपनी बर्निंग प्रोसेस को क्या है स्टार्ट करता है। उसको हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहना है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजन। लास्ट वन इज एक्सप्लोजन। Explosion. Now see, when a firecracker is ignited, a sudden chemical reaction takes place with the evolution of a heat. Now see, when a firecracker is lighted, some reactions takes place, evolution with the heat and the light energy and sound. जब भी हम firecrackers को heat energy सप्लाई करने के बाद immediately provide the light and heat. जैसे अपने firecrackers रहते हैं। Now see, a large amount of gas is also released. Such reaction is called the explosion. Now, when a firecracker is ignited, a sudden chemical reaction takes place with the produce of a heat and light and a large amount of a sound. A large amount of gas is also released. Such reaction is called the explosion. एक ऐसी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जब कोई सब्सटेंस क्या करते हैं बोलो तो हीट एनर्जी को क्या करते हैं और लाइट एनर्जी को, साउंड एनर्जी को, और उसके साथ गैस भी क्या है प्रोड्यूस करते हैं। उसको हमें क्या कहना हो तो एक्सप्लोजन कहना। इट इज कॉल्ड एज द एक्सप्लोजन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन सी फ्लेम। नेक्स्ट वन डिस्कस अबाउट द फ्लेम। नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा फ्लेम। So next one concept is a flame. So what is the meaning of a flame? Now see, the structure of a flame. Now see, different materials burn in a different ways. Now see, different materials burn in the different ways. Some burn with the flame while others do not give out of a flame. ध्यान में रखिए, different materials burn in a different ways. Different materials क्या होता है, different ways में क्या है burn होते हैं। Some material gives the flame, some material do not give the out of a flame. Listen, now see the structure of a flame.
हम एक कैंडल का क्या लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। नाउ सी स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, structure of a flame. Now see, there are three main zones in a candle flame. Now take the example of a flame का हम लेते हैं। There are three main zones of a candle. जब हमारा कैंडल बर्न्स होता है तो उसके क्या बोलते हो, उसके क्या है, थ्री मेन जोन्स रहते हैं। इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है। नाउ सी, टेक वन कैंडल, इसका क्या रहेगा बोलो तो, दिस वन इज, ये रहेगा उसका टोटली ब्लैकिश कलर में रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। नाउ सी दिस वन इज अ नेक्स्ट फ्लेम and this one is a next flame. This one is a candle. ये अपना क्या होता है, एक कैंडल है। Now see this one is outermost zone. Now see there are three main zones of a candle flame. One is a outermost zone. Outermost zone. Next one is a middle zone. Middle zone. Last one is a innermost zone. Now see there are three main zones in the candle flame. One is outermost, middle, and the last one is innermost zone. Now see, it is the hottest part of the flame. Now see, ये क्या अपना outermost zone is the hottest part of the zone. ये क्या रहेगा, hottest part of the zone. ये अपने कैंडल का क्या बोलते हो, hottest है। As the supply of the air is sufficient, it is the zone of the complete combustion. Now see, यहाँ पर एयर का क्या बोलते, सप्लाई क्या है, सफिशियंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्या है, कंबशन। नेक्स्ट नाउ सी, द पार्ट ऑफ द फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट एंड इट द जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। नाउ सी, सेकंड पार्ट अपना जो मिडल रहेगा, द मिडल पार्ट इज मॉडरेटली हॉट एंड इट जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ये क्या बोलते, फर्स्ट क्या रहेगा, कंप्लीट कंबशन रहेगा। दिस वन इज कंप्लीट कंबशन, सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पर क्या बोलते हो, इनकम्प्लीट कंबशन, and first one is a complete and second one is a incomplete combustion. Now last one, see, it is the least hot part of the flame. Now see, ये क्या बोलते हो, it is the least part of the flame near the wick of the candle, no combustion takes place. यहाँ पर क्या बोलते हो, no combustion takes place is the least hot. ये क्या बोलते हो, बहुत ही hot नहीं रहता है, least hot रहता है, और there is a no combustion, तो यहाँ पर क्या बोलते हो, combustion नहीं होगा, no combustion, पर कंबशन क्या है, हो नहीं सकता है। Understand? These are the three zones of a candle flame. One is a outermost zone, middle zone, and the innermost zone. Now see the fuels. Next one जो concept रहेगा आपका fuels. Next one जो concept है वो क्या बोलो तो fuels है। Next one is fuels. Now see, fuels are substances that can burn in air to produce the heat and light energy. Now see, when a fuel start burning in the presence of air to produce the heat and the light energy. जब कोई substances एयर के साथ बर्न होते हैं, बर्न होते समय वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बोलो तो हीट और लाइट एनर्जी क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमें क्या कहना बोलो तो फ्यूल्स कहना। इट इज कॉल्ड द फ्यूल्स। फ्यूल्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट प्रोड्यूस द हीट एंड द लाइट एनर्जी। फ्यूल्स एक ऐसे सब्सटेंस है, वो एयर के साथ मिक्स होकर क्या अपना बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, करते समय क्या करते हैं बोलो तो लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमें क्या कहना बोलो तो फ्यूल्स कहना है।
फ्लूइड्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो फ्लूइड्स क्या बोलते क्या रहेंगे? इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस। फ्लूइड्स क्या रहेंगे? सॉलिड भी रहेंगे, लिक्विड भी रहेंगे और क्या बोलो तो गैस भी रहेंगे। तो फ्लूइड्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और gaseous. Now see, so what are the examples of solid fluids? Take the example of a coal, wood and the cow dung etc. सॉलिड फ्लूइड कौन से रहेंगे? कोल रहेगा, वुड है, काउ डंग है, एंड द केक्स। So these are the examples of solid fuels. ध्यान में रखिए, फ्यूल्स कौन भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फ्यूल्स क्या होता है? सॉलिड भी रह सकते हैं, लिक्विड भी रह सकते हैं और क्या है? गैसेस भी क्या है? रह सकते हैं। नेक्स्ट नाउ सी लिक्विड फ्यूल्स। केरोसिन है अपना, केरोसिन है। नेक्स्ट में अपना रहेगा पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल, डीजल, एलटीसी आर दी लिक्विड फ्यूल्स। नाउ द गैस आर दी natural gas, coal gas, water gas, biogas are the example of fuels. Natural gas, coal gas, water gas. So these are the examples of solid, liquid, gas. Understand? तो फ्यूल्स के क्या बोलते हैं? तीन स्टेट में क्या उसके एग्जांपल्स रहेंगे। और फ्यूल इज कंसिडर्ड गुड इफ, उसी फ्यूल्स को हमें अच्छा कहना, ध्यान में रखिए। इट बर्न्स इजीली इन द एयर, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ध्यान में रखिए, हमें कौन से फ्यूल्स को अच्छा कहना है? इट बर्न्स इजीली इन द एयर, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव अनवांटेड रेसिड्यूज, इट इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। तो फ्यूल्स क्या होते हैं? इजीली कहाँ पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ज्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर उनका क्या होता है? इफेक्ट नहीं होता। क्लोरोफिल वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स वी कैन बी राइट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपको दिए सो है, आपको लिख लेना है। नाउ सी व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। जब कोई बर्निंग फ्यूल्स बर्न होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं, ध्यान में रखिए। बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक्स वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। नाउ सी burning of fuels like wood, coal, petroleum produce the unburned carbon particles. These particles are very fine and can cause this respiratory disease like asthma. ध्यान में रखिए, जब वुड, कोल, पेट्रोलियम अनबर्न्ड जो पार्टिकल्स रहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जब इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएंगे तो हमें क्या होता है? अस्थमा होने के क्या ज्यादा चांसेस रहते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर and increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere leads to the greenhouse effect. Now see, combustion of fuels and the carbon dioxide to the atmosphere and increase the level of carbon dioxide and it causes the greenhouse effect. जब हम हद से ज्यादा जब किसी फ्यूल्स को यूज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो तो? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा और उसका मेनली इफेक्ट किसके ऊपर हो जाएगा तो? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट और इनकम्प्लीट कंबशन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इट इज अ पॉइजनस गैस, इट कैन कॉज डेथ इन द इनहेल्टेड। जब अपना मीथेन जो रहता है इनकम्प्लीट एयर में जब वो बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो तो? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और ऐसी हवाएं क्या हो तो इसके कारण हमारी जान भी क्या है जा सकती है। और सी बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। अपना जो कोल है और डीजल है वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है एंड इट इज वेरी हार्मफुल टू अस। नाउ सी फ्यूम्स फ्रॉम द इंजिन्स ऑफ व्हीकल्स कंटेन नाइट्रोजन, दिस ऑक्साइड्स आल्सो डिसॉल्व इन रेन वाटर टू प्रोड्यूस द एसिड रेन। जो अलग अलग प्रकार जो हार्मफुल ऐसे गैसेस रहते हैं वो एसिड रेन के साथ डिसॉल्व होकर अर्थ के ऊपर गिरने के बाद जिसको आते द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। नाउ फॉलोइंग स्टेप्स कैन रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। There are different kinds of steps are used for the reducing the effects of burning of fuels. Burning of fuels के जो ये कंट्रोल कर रहा है उसको क्या होता है? अलग अलग प्रकार के अलग अलग मेथड से उसको हम क्या है कंट्रोल में क्या है कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो इस तरह से यहाँ पर अपना क्या होता है चैप्टर क्या है कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी सॉल्व द एक्सरसाइज। सभी को अपना क्या होता है एक्सरसाइज क्या करना है सॉल्व करना है। ओके, टुडे स्टॉप वी कंटिन्यू on the next session with a new chapter.